यहाँ पर फिर मुझे एक पंजाबी की कहावत याद आ गई। Another Punjabi phrase I remember here, आदत पई कुड़ी नू नहीं जांदी बुढ़ी उड़ी नू। that whatever the habit of a small girl, when she'll become old, the habit will be with her. बच्चे को जो बचपन से आदत डाल दी जाती है, जो उसकी जिंदगी का लाइफस्टाइल बन जाता है, वो उसकी ताहयात चलता है। Whatever this lifestyle you will give a child, it will become his personality. और उसमें उन सब का बड़ा किरदार होता है जिन्होंने उसे सिखाना है। And all of them are playing a vital role, those who are teaching that child. माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो That सकते could हैं, be parents or brothers and चाचा sisters, चाची, फूफा फूफी, any खाला, uncle or aunt, कोई भी हो सकता है। anyone. लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माँ बाप और बहन भाइयों की है। But the most important responsibility is for parents and siblings. और यहाँ पर और ज्यादा वो मुख्तसर कर रहा है कि अगर अपनी औलाद को चाहते हो कि किसी रास्ते पर जाए, उसके मुताबिक उसकी तरबियत कर। And here he is saying, if you want your child to walk on a way, you need to train him in his childhood. वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, When he'll become old, he will not turn from that. फिर उसको आदत ही पड़ी रहेगी। He'll become habitual. अक्सर औकात लोगों को काम करने की आदत है, वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। Often people have a habit to work, so they get up early in the morning. मैंने माँ जी को देखा है, अपनी अम्मा को, I've कि seen- वो सुबह सुबह उठी होती हैं। I've seen my mother that she gets up early in the morning. वो रात को 12-1 बजे भी सोए थे, सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ पाए। Even if she sleeps at midnight, she gets up early in the ये morning. आदत पड़ी होती हैं। This is habitual. इसी तरह से बहुत सी आदत आप लोग सब जानते हैं अपने अपनी जिंदगियों में। There are so many habits you all might know in your lives. कुछ लोगों ਨੂੰ आदत ਹੁੰਦੀ ਏ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੱਲੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ। Some people have an habit that you send them somewhere else, but they reach somewhere else और- first. जहाँ बंदा रहता है उसकी आदत उसकी जिंदगी में आ जाती So the environment have a great impact on a person. है। तो माहौल को हमने उनके लिए किस तरह का बनाना है, हमारी जिम्मेदारी है। How we can give them a good environment, it's our responsibility. अब हम देखेंगे किरदार जिनकी जिंदगियों में उनके वालिदैन ने काम किया। Now we will see some characters from the Bible in whom their parents have worked. एक शख्स जिसका नाम शमूएल, We know a person whose name was Samuel. ये शख्स जिसने सुलेमान बादशाह के बाप को मसा किया। This is a very same person who has anointed the man who called the father of Solomon. और इस्राएल के पहले बादशाह को भी इसने मखसूस And किया। he anointed the first king of Israel. ये उस मरहले तक के बादशाह को मसा करे कैसे पहुंचा। How he got up to that level that he is anointing the kings. ये हम बाइबल मुकद्दस में से We देखें। will learn that from the Bible. मेरे साथ निकाल लें Let's open up with me. शमूएल की किताब, पहला शमूएल। 1 Samuel. इससे पहले हमें मिलता है कि हन्ना जाती है हैकल के अंदर और वहां पर वो दुआ करती है खुदावंद के सामने। Before that, in chapter 2, we got to know that Hannah went to the presence of God and she prayed over that there for the baby. और फिर खुदावंद इसे औलाद बख्शता है। Then God gave her the son. और इसने पहले एक उसकी जिंदगी के लिए मकसद चुन रखा था। So she has to choose a purpose, a plan for the कि baby. खुदा जो तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगी। That whatever God you will give me, I will give back to you. और दूसरे बाब के अंदर उसका एक गीत भी हमें उसकी दुआ नजर आती है। And in the second chapter, we got to know about the song of Hannah. और जब ये शमूएल पैदा हुआ तो वो उसे हैकल में ले आई। And when Samuel got born, she brought her to the temple. और फिर यहाँ पर जब हम 11वीं आयत में देखते हैं तो सबसे पहला बयान हमें शमूएल के बारे में मिलता है। So when we look at the verse 11, we got to know about Samuel. यहाँ पर 11वीं आयत में लिखा है, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और एली काहिन के सामने
वो लड़का खुदावन की खिदमत करने लगा। So it is written in verse 11, then Elkanah went back to Ramah, but the boy Samuel stayed in Shiloh and served the Lord under the priest Eli. सबसे पहले हमें एक शख्सियत मिलती, वो है शमूएल। The first person we got here is Samuel. उसके बाद हम इसका मुआजना करेंगे उस शख्स के बेटों के साथ जिसके पास ये रह रहा था। Then we will compare Samuel with the person with whom he was staying with his sons. और जब हम एली यानी उस काहिन के बारे में देखेंगे जो उस जगह पर कहानत का काम सरंजाम दे रहा था, उसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। When we learn about Eli, the priest who was serving in that temple, we'll see what Bible tells us about him and his sons. इसी की 12वीं आयत में लिखा है, और एली के बेटे बहुत शरीर थे। And in the verse 12 it is written that the sons of Eli were scoundrels. उन्होंने खुदावन को ना पहचाना। They paid no attention to the Lord. पहले हमें एक लड़का नजर आ रहा है जो खुदावन की खिदमत कर रहा है। First we see a boy who is serving the Lord. दूसरी जगह पर हमें एक शख्स के बेटे नजर आ रहे हैं जो शरीर थे। And on the other hand we are seeing the sons who are scoundrel. एक वो औरत है जिसे खुदा ने बख्शा और उसने अपने वादे को पूरा किया और उसे खुदा को सौंप दिया। There's a woman God has promised and she has given back whatever she has decided to do that with the child. एक हमें वो नजर आता है जिसको खुदा ने जिम्मेदारी दी कहानत का काम करने की, उसने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की। And the second one to whom God has given the priesthood and he has not trained his children. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके बेटे शरीर थे। The word of God says that his son were scoundrel. यानी गलत काम करने वाले, गलत रास्ते पे चलने वाले। It means that they had evil ways and they have evil deeds. अब आगे ये करते क्या थे वो भी लिखा है, और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता और उसको कड़ा या देगचे या हंडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सहला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि वो अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावन के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावन की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। So what they used to do, they used to steal from the sacrifice people presented before God. अब ये परवरिश की वजह से ऐसा था। So due to the upbringing, this was happening. कि वो अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर रहे थे। That they were not even paying their responsibilities. और यहाँ पर लिखा है कि लोग खुदावन की कुर्बानी से घिन खाने लगे And थे। it is written here that even people used to hate घिन the खाना, sacrifice of God. घिन खाने से मुराद है किसी चीज से नफरत करना। So word hate means to do not like something. ये परवरिश के कमाल है। This is something you called upbringing. अब दूसरी तरफ हमें फिर शमूएल का किरदार मिलता है। On second hand, we see Samuel. ये वो नौजवान जिसके साथ खुदा ने बात की। The person, the young boy God has talked to. वहां पर एली काहिन के बेटे जिनको मखसूस किया गया था ताकि वो कहानत का काम सरंजाम दे और खुदा के करीब रहें। So the Eli's son were anointed to do the serving in the temple of God. लेकिन यहाँ पर एक बच्चा है
जिससे खुदा बात करना But चाहता है। here is a child God is